So here we are discussing the excretory system of frog, and in the excretory system of frog, first we need to know what is the nature of excretion that is done by the frog. So if we talk about the nature of the excretion, so in the nature of the excretion we will get the frog is ureotelic. That means the frog excretes urea as its chief excretory product. Okay, so hence they are called as ureotelic. So just like that, the animals, those who secrete uric acid, called as uricotelic, ammonia ammonotelic, urea ureotelic. So they are ureotelic. Okay, acha. Excretory system consists of four things. The first entity is the kidney. So in kidney you can see there are various other things present attached to the kidney which is not related with the excretory system, but I have just made the diagram over here. For example, at the topmost or anterior part of the kidney you are going to find fat bodies present. Okay, attached to the kidney, running almost longitudinally, you will find a gland which is called as adrenal gland. So adrenal gland is basically present over the kidney. It is attached to the kidney, but ये किडनी का हिस्सा नहीं है, ये किडनी के ऊपर अटैच्ड है, चिपका हुआ है. ठीक है, like that. Okay, so this adrenal gland and fat body has nothing to do with the excretory system, but they are present on the kidney or attached to the kidney. Hence I have made the diagram. Okay, so this is kidney and kidney के ऊपर this adrenal gland is present. Suppose this hand is the kidney and this pen is the adrenal gland which is present like this. Okay, now from the kidney comes out ureter. Ureter comes and it opens in cloaca, and where in the cloaca? Over here you can see I have given two opening. These are the openings of the ureter जो पीछे से like cloaca के पीछे से होते हुए आके यहाँ खुल रहा है. Okay, so these opening are called as what? Ureteric orifice. Ureter का opening ureteric orifice. Okay, so whenever they give out urine, the urine comes out like this and it gets temporarily stored in the urinary bladder. Okay, urinary bladder is present over here, and whenever the urinary bladder will get filled, urinary bladder will compress and it is going to send out the urine which will finally go out through the cloacal aperture. Okay, so it's little bit यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है, ऐसा होना चाहिए था. यूरेटर से आके जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में गिरता है जो फिर क्लोका में खुलता है. हाँ, है ना, जैसे कि कल हम लोगों ने, ये कल नहीं, बहुत आगे के वीडियो में जहाँ पे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिस्कस किया, वहाँ पे हम लोगों ने देखा रेक्टम ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोका. सो सी ओपनिंग ऑफ द रेक्टम इनटू द क्लोका आई हैव गिवन. बट यहाँ पे ऐसा होता है, यूरेटर कम्स एंड इट गोज फ्रॉम द बैक ऑफ द क्लोका एंड इट ओपन्स ओवर हियर. Okay, in this portion of the cloaca, and the urine comes and it directly enters inside the urinary bladder. When the urinary bladder will get full, okay, it is going to compress and it is going to throw out the urine which will go out through the cloacal aperture. Okay, so these are the entities, these are the components of excretory system of frog. Okay, now we will discuss them individually. बाकी तो मैकेनिज्म सेम होगा. हार्ट पंप करेगा, ब्लड आके कहाँ घुसेगा? किडनी में. उस ब्लड से किडनी क्या करेगा? इट विल फिल्टर द ब्लड एंड इट इज गोइंग टू सेपरेट द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड यूजफुल सब्सटेंसेस. किडनी विल सेपरेट द, हार्ट विल पंप, ब्लड विल कम एंड एंटर इनसाइड द किडनी. किडनी उस ब्लड का दो पार्ट बनाएगा, एक पार्ट जो नेसेसरी है, एक पार्ट जो अननेसेसरी है. अननेसेसरी में एक्सेस सॉल्ट, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, यूरिया, ये सब अननेसेसरी में है. नेसेसरी में वाटर, नेसेसरी सॉल्ट, आयन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हो जाएगा. तो जो नेसेसरी पार्ट है किडनी विल रीएब्सॉर्ब दैट बैक इनटू द बॉडी, वेयरएज जो अननेसेसरी पार्ट है दैट विल बी गिवन आउट बाय द किडनी टू द यूरेटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. Ureter will bring the urine and open here, store the urine in urinary bladder. That urine has excretory substance, excess salts, excess ion, unnecessary substances, okay, which are not useful for the body or it can be harmful. When this urinary bladder will get filled with the urine, it will compress, the urine will go out, and along with urine all the unnecessary harmful substances will also go out along with the urine. Okay, so I hope you understood the overview of the excretory system. Now I am going to give you some notes. Okay, make diagram. तो यहाँ पे अभी जो डिस्कस किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी वगैरह, उसका नोट यहाँ पे मैंने दे दिया है. सो पेयर ऑफ किडनीज, हम लोगों ने डायग्राम में पेयर ऑफ किडनीज देखा.
So there are two mesonephric kidney. We have discussed about pro, meso, meta, and I told you that organism, those who live in water, they generally have mesonephric kidney, और those who have any relation with the water, they have mesonephric kidney. Reptile से metanephric हो जाएगा, ठीक है? Situated on the either side of the vertebral column, एक इस तरफ, बीच से vertebral column जा रहा है, तो either side of the vertebral column, kidneys are oval, dark, red, bean-like structure. bean तो खाया होगा, देखने में bean जैसा ही था. Which consist of about 2000 nephrons. About nephrons you have studied in your lower classes like 8, 9, 10. And अभी जो mechanism में मैंने बोला that whenever the heart will pump, the blood is going to come and enter inside the kidney. Then kidney separates the essential substances of the blood and non-essential substances of the blood. Okay? So ये जो separation है, ये kidney करता है, और kidney में ये separation कौन करता है? Kidney में ये separation करता है nephrons. Okay? तो जिसको हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बुलाते हैं, अल्टरनेट नेम ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन्स आर कंसीडर्ड टू बी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बिकॉज द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, दैट फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इनसाइड द किडनी इज डन बाय द nephrons. Nephrons are responsible for separating the essential and non-essential substance. Nephrons are responsible for forming urine and filtering the blood. Hence, nephron is considered to be the functional and structural unit of kidney. Okay. Next one is ureter. So, white fine tube which arises from the outer region of each kidney. We have seen it arises from the kidney. It extends and opens into the dorsal wall of cloaca. That one also we have seen near the urinary bladder. ठीक है, वो जो ureteric orifice था. In male frog, this point is very important. This point is very important. In male frog, the ureter is also called as urinogenital duct, as it brings sperm as well as urine. Okay. So in case of male, कैसे होता है ये जब reproductive system discuss करेंगे, you will understand at that point. But the ureter of the male frog brings urine as well as sperm. How it brings urine as well as sperm, you will understand when we discuss reproductive system. But in case of female, the ureter will bring only urine. But in case of male, it will bring urine as well as sperm. Hence, the ureter in case of male is called as urinogenital duct, because urine को भी ला रहा है, genital sperm को भी ला रहा है, urinogenital duct. Okay. Urinary bladder, large transparent bilobed ऐसे था ना, ऐसे था bilobed, thin walled elastic chamber that opens into the क्लोका. ठीक है, उसका ओपनिंग क्लोका में है, क्लोका के साथ वो जुड़ा हुआ है, हम लोगों ने देखा है डायग्राम में. देन क्लोका, स्मॉल मीडियम चेंबर इनटू व्हिच एनास यूरिनोजेनिटल एपर्चर्स यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स. ठीक है, वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स. एनास माने वही रेक्टम का जो ओपनिंग है उसके बारे में बात चल रहा है. इट रिसीव्स फीकल मैटर फ्रॉम एनास, जेनिटल प्रोडक्ट फ्रॉम यूरिनोजेनिटल एपर्चर्स. ओके, एंड यूरिन. ठीक है, यूरिन भी निकलेगा एज वेल एज स्पर्म भी निकलेगा इन केस ऑफ मेल. सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बोला गया है. ठीक है, तो ये सब चीज जेनिटल प्रोडक्ट माने स्पर्म, ओवा, ठीक है, ये सब, फिर यूरिन, फीकल मैटर, एफएम माने फीकल मैटर, ये सब रिसीव करता है क्लोका, एज इट इज अ कॉमन चेंबर फॉर सेवरल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द नोट दैट यू नीड टू ऐड underneath that diagram of excretory system. Now we will move ahead to the nervous system. इसका ये लिख लो अच्छे से. सो यहाँ पे अभी हम लोग नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, एंड बोला जा रहा है कि नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट्स है. तो 3 पार्ट्स में क्या क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे. नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. जो पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बोला जा रहा है इट हैज 2 पार्ट्स. एंड व्हाट आर दोस 2 पार्ट? वन इज ब्रेन, अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो ब्रेन में बोला जा रहा है कि ब्रेन इज एनक्लोज्ड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और स्कल. ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. व्हाट आर दो 3 पार्ट्स? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. ठीक है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स है और कौन सा पार्ट क्या करता है वो यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है. ठीक है, तो ये पार्ट ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा मुखस्तो पैरोट लर्निंग का जलवा दिखाना होगा, यू कैन से. तो फोर ब्रेन इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स. याद रखना पड़ेगा क्या करता है ऑल्फैक्टरी लोब? रिसीव स्मेल इनपुट्स. ठीक है, स्मेल तो समझ में आ ही रहा है. 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन है. 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है,
मेंटेन्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेंसोरी इंपल्सेस को लेता है, लेके उसको समझता है, समझ के आउटपुट भी देता है. सपोज द फ्रॉग हैज स्मेल्ड समथिंग, दैट इज अ फूड और नॉट. दैट स्मेल विच द फ्रॉग हैज गॉट, वो स्मेल किस चीज का है वो भी ये डिटेक्ट करेगा. और वो जो स्मेल है, वो स्मेल को मुझे फॉलो करना है या नहीं करना है, वो स्मेल मेरे कोई प्रे का है या नहीं है, वो स्मेल मेरा किसी ईटिंग सब्सटेंसेस का है या नहीं है, वो स्मेल ऐसा किसी का है जिससे मुझे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, लाइक दैट. ऑल दोज सेंसोरी इनपुट्स का एनालिसिस एंड उसके ऊपर एक्शन इज डन बाय द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. एंड वन डायनसेफालॉन है विच मेंटेन्स इनवॉल्युंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. हर एक्टिविटी तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनल का मूवमेंट, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. तो ये सब डायनसेफालॉन बोल के एक है, वो कंट्रोल करता है. मिड ब्रेन ऑप्टिक लोब्स क्या करेगा, विजुअल इनपुट को एनालाइज करेगा. एंड क्रूरा सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री, ये क्रूरा सेरेब्री क्या करता है, ये बेसिकली एक कनेक्टर के जैसा है. नर्व फाइबर्स जो कुछ कनेक्टर के जैसा काम करेगा, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा विद मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, मेडुला ऑब्लोंग सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन इंक्लूड्स टू पार्ट्स, सेरेबेलम जो बैलेंस मेंटेन करता है, बॉडी का बैलेंस, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा मेंटेन्स रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म. ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑफ फोर ब्रेन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होना जरूरी है. और वो कनेक्शन बनाएगा कौन, ये क्रूरा सेरेब्री जो मिड ब्रेन का हिस्सा है. तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ब्रेन डिस्कस किया है, अब स्पाइनल कॉर्ड का डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से डिस्कशन स्टार्ट किया है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन डिस्कस किया, अब स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं. क्या बोला जा रहा है, इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा थ्रू फोरामेन मैग्नम. यहाँ पे देखो, दिस इज स्काल. ओके, स्काल के अंदर है ब्रेन, दिस इज ब्रेन, ब्रेन एमओ, यहाँ पे देखो एमओ लिखा है, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. वहां से स्पाइनल कॉर्ड एराइज होता है एंड रन करता है लॉन्गिट्यूडनली. ठीक है ना, तो स्काल से ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये जो ब्लैक में है स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्काल से स्पाइनल कॉर्ड निकला, तो निकला कैसे, कुछ एक होल होना पड़ेगा. ये जो स्काल में एक होल है, जिस होल के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड निकला है, इस होल को हम लोग क्या बुला रहे हैं, फोरामेन मैग्नम बुला रहे हैं. ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड निकल के कहाँ घुस जाता है, देखो, दिस इज व्हाट, वर्टिब्रल कॉलम. फ्रॉग विल कम अंडर वर्टिब्रा, फ्रॉग विल हैव अ वर्टिब्रल कॉलम. सो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक जगह है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, न्यूरल कैनल. ठीक है ना, और उस न्यूरल कैनल के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड रन करता है एंड लाइज प्रोटेक्टेड विद इन द न्यूरल कैनल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. एंड कैसे स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होके कैसे वो बाहर आया, कैसे वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आया, इट केम वाया अ होल, वाया अ पोर्ट व्हिच इज कॉल्ड एज foramen magnum. Okay, so spinal cord is a short, thick, cylindrical, white in color. It is mainly concerned with reflex action. Reflex action तो सबको पता है, गर्म चीज छूने से हम लोग पटक से हाथ हटा देते हैं. These are reflex action. So spinal cord basically it is controlling what, reflex action. Central nervous system three part. Number 1 central nervous system, number 2 peripheral nervous system. Peripheral nervous system, central nervous system present at the central portion of the body, peripheral which goes into the periphery, lateral side. So cranial nerve हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. frog has 10 pairs of cranial nerve. ये जो ब्रेन है, ब्रेन से ऐसे साइड के तरफ कुछ नर्व्स निकलेगा, पेरीफेरी में कुछ नर्व्स निकलेगा. ठीक है, तो ये सब जो नर्व्स पेरीफेरी में निकल रहा है ये क्रेनियल नर्व. सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व ऐसे पेरीफेरी साइड में निकलेगा, दिस विल बी कॉल्ड स्पाइनल नर्व. सो स्पाइनल नर्व भी कितना है, 10 पेयर्स. क्रेनियल नर्व्स भी कितना है, 10 पेयर्स. सो यहाँ पे जो थर्ड नर्वस सिस्टम का पार्ट था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसके बारे में नोट दिया है. तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विल कंट्रोल ऑल द इनवॉल्युंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. ठीक है, so it is a system of nerve fibers and ganglia which controls and coordinates the involuntary activities of the visceral organ. visceral organ के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है.
such as movement of alimentary canal. जब फूड को स्वेलो करेगा, फूड मूव करेगा थ्रू द एलिमेंट्री कैनल, दैट मूवमेंट कंट्रोलिंग द सिक्रेशन ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड. स्टोमक में यूनिसेलुलर ग्लैंड, ऑक्जेंटिक सेल, मल्टीसेलुलर ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड. सिमिलरली इंटेस्टाइन में भी उस तरीके का ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्रिप्स ऑफ लिबरकुन. तो ये सब जो ग्लैंड्स है, इन सब ग्लैंड्स का कब सिक्रेशन करवाना है, कब बंद करवाना है. 24/7 तो सिक्रेशन नहीं करना है. जब फूड जाके पहुंचेगा स्टोमक में तब सिक्रेशन करवाना है. जब फूड जाके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तब सिक्रेशन करवाना है. जब फूड नहीं है तब सिक्रेशन बंद. सो हु विल डू दिस कंट्रोल ऑफ कब सिक्रेशन करवाना है, कब नहीं करवाना है, कब स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. अब अगर मैं चाहूँ मेरे स्टोमक में आधा लीटर HCl रिलीज हो जाए, मैं चाहने से थोड़ी ना होगा. खाना जाएगा पेट में तो ऑटोमेटिकली HCl विल कम आउट. ओके ना? सो दिस इज नॉट इन माय कंट्रोल. सच इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, एक्शन ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ यूरिन थ्रू यूरेटर, दैट इज आल्सो एन इनवॉलंटरी एक्टिविटी, एक्सेट्रा लिख दिया है. ठीक है, तो ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. सेंसरी सिस्टम. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम खल्लास, खत्म, फिनिश. नेक्स्ट है सेंसरी सिस्टम. 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है. क्या क्या? पहला है टेंगो रिसेप्टर. वी नो टेंगो रिसेप्टर इज अ टच रिसेप्टर फाउंड इन स्किन. olfactoreceptor, smell receptor found in nasal epithelium of the nasal cavity. Gustatoreceptor, taste receptor found in the taste bud located in the epithelium of tongue. प्लस हम लोग यहाँ पे बकल कैविटी भी लिख के रखेंगे. ठीक है, ये सब में प्रेजेंट है. ईयर of frog is called as statoacoustic organ because the ear of frog gives stato माने static माने balance, acoustic माने sound. That means the ear of frog gives not only one but 2 important functions or 2 important mechanisms to the frog. That is, it will help in hearing. Hearing हम लोगों ने already discuss किया. Tympanum present in the head, कान का पर्दा है ना, तो that tympanum is connected to the internal ear via columella oris. ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया एनिमल किंगडम, फ्रॉग में भी. एज वेल एज बैलेंस, बॉडी का बैलेंस रखने में भी मदद करेगा कौन? ईयर. ठीक है, तो ईयर इज कंसिडर्ड एज अ स्टेटोअकॉस्टिक ऑर्गन एज इट प्रोवाइड्स बोथ द एड्स ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंस. अभी आई के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आई के बारे में नोट थोड़ा सा दे दिया है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंसरी सिस्टम का हिस्सा है. ठीक है, सो आईज हम लोगों ने देखा है हेड के साइड्स में प्रेजेंट है. ठीक है, डिस्कशन ये सब हम लोगों ने किया है कि आईज जो है वो प्रोटेक्टेड बाय आईलिड है, जिसमें सिर्फ लोअर आईलिड मूवेबल है, अपर आईलिड मूवेबल नहीं है. हेंस दे हैव अ थर्ड आईलिड प्रेजेंट कॉल्ड nictitating membrane, which is a transparent translucent membrane, provides protection as well as keeps the eyes moist. ये सब डिस्कस किया है ऑलरेडी आई के बारे में, तो इसलिए इसको और विस्तृत एक्सपांड करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका भी नोट लिख लो. ठीक है, नेक्स्ट बचा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वी विल स्टार्ट इट सून.